Now we'll go a little further and you आगे जाएंगे. it's an amazing scripture I want you to see here. एक अद्भुत आयत मैं चाहता हूँ. 1 Peter 5:8. पहला पत्रस 5 उसका. Oh man, this is so awesome. I know you have heard it so many times. मुझे पता आपने बहुत बार सुना है. But I want to show this to you from a different angle. लेकिन मैं आपको अलग तरह से दिखाना चाहता हूँ. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए. Oh, now I want you to pay very close attention. मैं चाहता हूँ बहुत ध्यान से आप देखें. Even though Satan has the ability to devour, शैतान में फाड़ खाने की क्षमता है. Hear what I'm saying. सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ. If you give him your words, he will do that. लेकिन अगर आप अपने मुंह के वचन देंगे तो वो करेगा. Understand? Bible says he is like a roaring lion, बाइबल कहती है वो एक दहाड़ते हुए शेर की तरह है, seeking whom he may devour. ढूंढ रहा है कि किसको फाड़ खाए. Satan cannot devour anybody. He has to search for the right people whom he can devour. शैतान किसी को फाड़ कर नहीं खा सकता. अपनी मर्जी से उसको ढूंढना पड़ेगा कौन मिलता है. Is this making sense to you? समझ में आ रहा है. He cannot say, oh Sam, Hap, he eats Sam. No. वो अपनी मर्जी से नहीं ढूंढ सकता किसको. Ram, Hap, he eats Ram. No. ऐसा नहीं हो सकता. He has to search. So in this congregation he will search. लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा. जैसे ये लोग हैं तो इसमें ढूंढना पड़ेगा उसको. कौन है मेरा दोस्त इसमें से? Who will say what I say? कौन मेरी बात को दोहराएगा, जो मैं कहता हूँ उसमें हामी भरेगा, मेरे साथ And it's so amazing. I started reading about lions, how lions pray, because whenever Bible says an example, I want to read in natural what God is trying to tell us. और ये बहुत अद्भुत है. जब कभी बाइबल एक उदाहरण देती है स्वाभाविक में, तो जरूरी है कि हम उसको समझें. मैं पढ़ने लगा शेरों के बारे में कि शेर लोग कैसे शिकार करते हैं. Now hear carefully. I was shocked when I read that. ध्यान से सुनना कि मैं Lions occasionally detect their prey through hearing. शेर अपनी शिकार को ज्यादातर सुन करके पहचानते हैं. Wow. He didn't. It's not through looking. He prays through hearing. शेर देख करके नहीं, लेकिन शेर सुन करके पहचानता है कि उसका शिकार कौन होगा. Okay. So for example, in a church setting, उदाहरण के लिए कलीसिया में he goes. वो जाता है. Oh, they're praising God, praising God, praising God, praising God, praising God, praising. Oh, one person. Oh, he's saying, मेरे साथ क्या? Hallelujah, he says. This is my subject. और this is whom I can devour. और उसको एक मिलता है जो कहता है मेरे साथ ये नहीं होता, वो नहीं होता, और वो कहता है यही है मेरा दोस्त. Lion finds his prey through hearing. शेर अपने शिकार को सुन करके पहचानता है. Satan, Bible says, is seeking. He has to search it. शेर बाइबल कहती है ढूंढता है, उसको ढूंढना पड़ता है. That's why the church says Satan, Satan, Satan. Don't give so much glory to Satan. कलीसिया करती है शैतान शैतान, इतनी महिमा मत दो उसको. No. नहीं. You became a perfect match for him. आप जीवन साथी. आप उसका जीवन साथी बन गए. He checked your profile. He found out your hobbies and he loved them. He's like, this person is my perfect match. उसने आपकी प्रोफाइल चेक करी, आपकी आदतें उसकी बिल्कुल उसको पसंद आई, तो उसने कहा यही मेरा जीवन साथी है. Amen. And you know what Bible says? बाइबल पता क्या कहती है? That the word of God is the sword of the spirit. परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है. So when Satan says, जब शैतान ऐसा कहता है, nobody loves you, कोई तुझसे प्यार नहीं करता, and you start saying, और आप कहते हैं that God has loved me with an everlasting love, I am a son. What happens? The sword comes out of your mouth and attack, and he goes पूंछ नीचे करके, because he is not a lion. He is a dog who acts to be a lion. तो जब शैतान आकर कहता है कि कोई तुझसे प्यार नहीं करता, आप कहें मेरे परमेश्वर ने मुझसे अनंत के प्रेम से प्रेम किया है और अपनी करुणा और भलाई से मुझे अपनी ओर बुलाया है, और वो तलवार आपके मुंह से निकलती है, उसको एक लगाती है और वो दुम दबा के भाग जाता है. That's the problem in the church. Christians don't know how to talk. यही दिक्कत है कलीसिया की कि मसीह लोग बात करना नहीं जानते हैं. If they are in an office, everyone is speaking. Hey, recession आ रहा है. Hey, वो भी बैठे हैं. Hey, recession आ रहा है. अरे किंगडम ऑफ हेवन में कोई रिसेशन ना आया है ना आएगा. Amen? अगर दुनिया के लोग चिंता करें कि तंगी आने वाली है, आर्थिक दिक्कत आने वाली है, तो आप ना बोले, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में कभी आर्थिक दिक्कत नहीं आएगी. Amen? Maybe Satan enters your house like,
हो सकता है शैतान आपके घर में से चौड़ा होके आए। And then a sound comes. Attack! And then, coo, 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 he goes out. फिर जब पढ़ती है तो भाग जाएगा अपने आप। But you should know how to talk. लेकिन आपको बोलना आना चाहिए, Otherwise, नहीं तो he will knock दरवाजा खटखटाएगा and you open और little दरवाजा bit खोलते हैं थोड़ा सा and he says, nobody loves you. और वो कहता है कोई तुझसे प्यार नहीं करता, And you say, nobody loves me. और आप कहते हैं कोई मुझसे प्यार नहीं करता। Please come. आइए, चाय लेंगे, ठंडा लेंगे. See, you've been going to that church for so long. देखो तुम- Nobody comes to say praise the Lord. देखो तुम इस कलीसिया जा रहे हो कब से, कोई Yes, तुमसे जय मसीह की I'm बोलना नहीं going to आता। that church for so long. Nobody says praise the Lord. Then he enters your bedroom. Then he lies down. कहता है, चल खिचड़ी बना मिल ले. That's why Bible says don't give place to Satan. इसीलिए बाइबल कहती है शैतान को जगह मत दो। That means we have the authority to give him place or we don't have to give him place. इसका मतलब अधिकार हमारे पास है, उसको जगह देनी है नहीं देनी है। Guys, are you getting what I'm saying? But people don't want that. अरे इतना कौन करे, इतना कौन बोलेगा? People say like, इतना बोलना पड़ेगा. लोग कहते हैं इतना बोलना पड़ेगा। फोन बिल निकाल लो उनका. And majority of the times, just no, but seriously I'm saying, majority of the times when they talk to people, you know, they talk about problems. ज्यादातर लोग जब बात करते हैं ना दूसरों से तो बताते हैं क्या क्या दिक्कतें हैं उनकी जिंदगी में, And then they say, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? इसीलिए तो होता है. और फिर पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब बोलते हो तभी तो होता है। Okay, मेरे पीछे बोलो, प्रभु मेरे साथ बोलो, प्रभु मेरे बड़े मुंह में मेरे